sniffer dog squad for the sake of conservation. He has founded the State Forest Cyber Cell. So you're going to be learning about all of this in a short while. And he has many feathers in his hat. He is the recipient of many state awards, many national awards, and the topmost being the UNEP Asia Environmental Excellence Award for the year 2004, 2024, and 25. So we are very, very happy and we are honored to have him as a guest speaker. He'll be enlightening you guys more about the current ongoing programs, the species, and how they are being safeguarded from poaching and illegal trade. So please join our hands to welcome Shri Ritesh Sarotia ji. Welcome, sir. Welcome. We are very honored to have you. We request all the students to switch on their camera, please. Your mentor should be able to see you. Yes, please do that, children. Please just switch on your cameras. हम भी आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप भी दिख जाएं रितेश जी, तो बहुत अच्छा होगा. Sure, I think now my camera is on, I believe. We can't see you, but still. See, I just dismissed this. Stop this. Check again. Now, I think now I am visible. Thank you so much for such a nice introduction. But I am not. I'm not like that. Whatever you have defined it. It's a teamwork, and I'm always lucky to work under the forest department, and I have a very wonderful team. So the all credit goes to the department and the team. I am just heading this team. And thanks to the Anshuman Sahab for providing the opportunity. And it's really interesting for me because earlier I have delivered my presentation, share my experience with all the classes of the society, and very few occasions I have a chance to interact with the schools children, and though this is very important, of course they are the future of our country. So I hope it would be helpful to them, whatever the experience I have during my workings. So I'll try to share my presentation. Please confirm whether it's visible or. अभी तो नहीं दिख रहा है. अभी आप दिख गए. ओके. ये चेंज भी हो रहा है? सर हो रहा है बिल्कुल हो रहा है. We can see the different slides. Yeah. Just let me know when there is a technical issue. I'll start my presentation. Can I start, or we should wait for a few more seconds? I think we are good to start. Got all the rooms. Yeah, perfect. Thank you. So once again, good evening and namaskar. And I'm going to share my experience for next 40-45 minutes about the topic assigned to me. It's critically endangered species in the illegal trade. So you would be seeing that many animals, especially the iconic camel, I tried to paste here in my first slide. And I hope you will enjoy my presentation, because you as a student in the school, you usually interact only one species, that is Homo sapiens. But I'm going to bring you guys in a very different world where we have a very different species, not only species, even wise genus, even their family wise, order wise, even sometimes even changing their kingdom also. So it's a very interesting word. So first we should know how this species is defined and what is the differentiation between the animal and wildlife and exotic life. So I put 6 picture here. The first, it's a domestic dog. We usually all are the animal here. 5 picture is the animal, but 1 is the animal, other is the wild animal. Then 2 is here is the exotic animal, and the last one is the wildlife. So the big challenge before everyone to understand the differentiation between the animal and wild animal, then wild animal and the wildlife, and the wildlife and the exotic animal. So
Dog is an animal, no doubt. Deer species of leopard is a wild animal. That means an animal which are listed in Schedule Wildlife Protection Act, India Act in 1972, and that act cover roughly 4,000 species in two schedule. Means there is an index where they keep a name of them. So like deer is a wild animal which usually found in wild. That means they are native in the wild in forest area and they're free ranging animals. And then leopard is again scheduled 1 animal and deer is in schedule 2. Then these two pictures are very important nowadays because they are exotic. That means these two species are not native to India, but somewhere in the world they are wild in their country, like iguanas and macaw. They are parrots. So these two species are somewhere in the South American continent. They belong to there, and they might be wild in their country, but for India, if this, they are exotic animals. So recently, India created an act we call is CITES. I have a slide further. So we call here in India, like in respect to Jabalpur, it's an exotic animal. It's not found in Madhya Pradesh or even in country. So these are exotic species. Huge demand in different parts of the world. And the sixth one is nothing but a tree which having nest. So it's a part of habitat of birds. So this we call technically it's a wildlife. That means wildlife, those is include the wild animal and the vegetation which are part of their habitat. So this is the legal definitions. Whatever I told you in my first slide, this is their legal definition and is mentioned nothing but in the our Wildlife Protection Act. So animal, wildlife and exotic species, I told you. So these are the difference. I clear by the picture. It's in very normal and essential. Ritesh, we'll just request the children to keep taking notes, please. Please continue to take notes. Whatever your respected mentor is telling you, keep taking notes, please. I'm sorry to interrupt you. Yeah, no, sure. And anyway, otherwise I'll share this presentation with your permission to them. Absolutely. So yeah. So now move to the second point, critically endangered. Out of these animals, wildlife and exotic, which we call the critically endangered. So in world, there is a organization we call the IUCN, International Union for Conservation of Nature. It's nothing but an international intergovernmental organization where all the participatory countries make their representative there and they make some office there and they define Earth as a global village and they define the entire plants and animal into their categorization. So usually they keep in 7 categorization and then broadly categorize into 3 subsections. The wild animals or wildlife which are highest risk. So they define it critically endangered or endangered in terms of their population, in terms of their role in ecosystem, and then the moderate risk. Usually they define into 3 categories. 2 categories: vulnerable and near threatened, anti-call, and the third one is the lower or unknown, means least concern or data deficiency. So among them, today the topic assigned to me related to the critically endangered animals which are in illegal trade. So the legal definition as per the IUCN is a species is classified as a critically endangered when it faces an extremely high risk of extinction in the wild. See my words, wild, not in captive or not in domesticated mode. Often due to the drastic population decline. First criteria, उनका populations बहुत कम हो, yeah, it's going towards extinction and declining trend. Limited geographic range or very small populations, like cheetah, like the Asiatic cheetah. It's only found nowadays in Iran. So it's a critically endangered species and very limited number, even roughly it's more less than 2-3 digits. And this category signals an urgent need for protection. That's why it urged the entire country to work for their protection. So, and interestingly, if we talk about the illegal wildlife trade, so these are the species are mostly targeted, and somehow these are the reason behind them to make them critically endangered. Very huge demand. So this is the way to define the critically endangered species. Now illegal wildlife trade. So
hope you understood the animal, wild animal, then species categorization, which is endangered, critically endangered, near threatened. Now the third point, the trade. So illegal wildlife trade, that means somewhere it's legal trade also. Like if we consider from India point of view, there is no legal trade. In India, trade of wild animal is completely banned. But for international purpose, there is a regulation. We call the CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna. It's a treaty between roughly 200 countries, and they define, and India is also signatory, and they've created one regulation how species trade in between two countries, like cheetah. We brought cheetah here in Madhya Pradesh in Kuno National Park. Hope you are aware. So we brought cheetah from 3 different countries. First batch was brought here from Namibia, then second batch from Africa, and the third one, recently we brought them from the Botswana. So this cheetah came from the CITES regulation, I mean, as per CITES regulation. Otherwise, there is huge demand in illegal market and black market, so this goes to extent. So these are the regulation trade, means legal trade. But what we are going to talk to you regarding on the illegal wildlife trade. So as per the Interpol report and UNODC report, the illegal trade of wildlife is roughly $23 billion annual transaction, and it's considered to be 4th largest crime in the world. And it's a transnational crime, means the demand from different countries, like tiger body parts demand in China and Vietnam, African elephant ivory demand in Europe, forest in Japan as well. So it's a transnational crime, and the quantum is huge, $23 billion. And since last 10 years, as per Interpol, 4,000 species of impacted, means somewhere the seizure of different parts of the world, and roughly currently 200 country in the world, roughly, and out of them 194 signed this treaty, and among them 162 countries is somewhere in the illegal wildlife trade affected, means seizure of that wildlife in different parts of the world, and that lead to roughly 4,000 species. It's maybe from it's made of some protected species of fish, mammals, apes, reptiles. So this is huge trade in world regarding wildlife is going on. And what is the demand in illegal wildlife trade? Illegal wildlife trade cover all 3 things. First, the live animal. Like hope you, if you good in reading newspaper. So day before yesterday, a seizure of a very critical endangered species in Kolkata and Mumbai by the CBI and DRI, and where they seized the slow loris and bendurang. They are very critically endangered species. So live animal trade. Then articles like their pads of bones, horns, scales, even eggs, and trophies. Trophies means they do some, like you heard, you have been seen in the movies, especially when they have a stuffed material like dummy of tiger or their cheetah, and also these are the articles, or these are the material used in illegal wildlife trade. And most of the demand of this illegal wildlife trade is in from 3 continents, and most of them are demand is in Asia, then Northern America, and the third is in the Europe. Demand of this wildlife articles are live wild animals. And who is at risk? That's very important. So as per the information of UNODC, roughly 24% of terrestrial vertebrates, that means the animal which usually live on the land, and they are having both backbone, the vertebrates. So 24% terrestrial vertebrates are affected by this wildlife trade. That include the mammals, birds, reptiles, and amphibians. And this is a very vicious cycle. If species is very rare, so its demand is very high in black markets. And if demand is very high, that intensify the poachers, and poaching is increases. If poaching increases, then their species further decline, and finally species decline if government not give intervention to curb this poaching. So it's a deadly feedback loop is there, and that finally lead to most of the species which are vulnerable to convert into endangered, then critically endangered, and few is now converted into extinction in wild.
So these are the problem related to illegal wildlife trade. Now coming to the second part of my presentation, how we are combating the crime as a government officer or with the help of citizens or the local community. So these are the two tools we are using. In international level, I told you earlier there is a convention. A convention we usually call the CITES or cities. CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. It's a convention, I told you, and it started somewhere in 1975, and India was the 9th member who joined this treaty. And as per this treaty, currently, and in every 4 years, there is a meeting we call the COP meeting, was organized. I think this year also we are going for the COP meeting. The last one was held in Panama. And this CITES regulation is one of the most interesting and most dynamic treaty. And they regularly work. They have their secretariat in Switzerland, and this cover roughly 40,000 species. And almost all the countries are participating, barring few countries like North Korea and some other country. Otherwise, almost all the countries are following these regulations. And this 40,000, out of this 40,000 species, roughly 60,000 species of animals, means wild animals, and 34,000 is roughly belong to the plants, means flora. And these species are categorized into 3 different appendices: Appendix 1, Appendix 2, and Appendix 3. Appendix 1 cover around just 1% of species. Roughly 300 species are there, like tiger is there, elephant is there. In Appendix 1, usually they kept those species which are critically endangered and their demand is very high. And in those species who are a part of Appendix 1, means their commercial trade is almost banned. Why I told you the ban? Because like cheetah is also in Appendix 1, but India brought cheetah from these 3 different countries because India confirmed them, India assured them that we are bringing cheetah for the scientific purpose. We are not bringing it just for commercial trade. And if someone want to trade, so the Appendix 1 is the trade is completely banned. And Appendix 2 is very important, where they allow the trade, they allow the transfer, they allow the transport, but very stringent norms is there. And 97% species fall under Appendix 2 only, like red sander. You tell me the name and most of them fall in Appendix 2. And Appendix 3 is an interesting schedule or appendix, where actually it's based on the country. Means if some country I want to keep this species in Appendix 3. If it's not in Appendix 1, Appendix 2, like peacock. Peacock was kept by the Pakistan. Pakistan feel that they want to conserve the peacock, and peacock, if we consider India in point of India, India say no, we have abundance of peacock and we do not bother about the peacock. Or maybe Russia also, Sri Lanka and our neighboring Bangladesh and Nepal. But Pakistan claimed, I want keep this peacock to be in Appendix 3. So this is a country specific. For that also very stringent condition for the trade of this Appendix 3 species. Like India is one of the most beneficiary of Appendix 3. It's very interesting. And we send a list of roughly 27 species. And we recommend them to keep in Appendix 3. And I told you it's in 1975, this convention came, India was the participatory, and recently India adopted this CITES regulation under Wildlife Protection Act. So this is an international regulation. If someone want to transfer or transport or trade the species from one country to another country, like when I was in Delhi, I get a letter. One software engineer who reside in the US in New York, and he want to come back to Mumbai, and they want to bring here this hyacinth macaw. So then they have to follow the CITES regulation here. So this is where this came in the picture. And for India purpose, like being in India, within India, we have a legal tool we call is a Wildlife Protection Act. It's a very stringent act. As per the different, I compare it with the other country as well, like Pakistan, like Bangladesh, Nepal, Thailand, Singapore. So India Wildlife Protection Act is one of the most stringent act.
and that roughly protect our 4,000 wild animals and few plants as well. Here also we have a 4 schedule. We call them is a schedule here, and in CITES we call the appendix. Out of 4 schedule, first 2 schedule keep the animal, third schedule keep the plants, and it's only 19 plant is there as a protected as specified plant, and schedule 4 is adopted as a CITES species. Entire CITES regulation we inserted in our Wildlife Protection Act recently in 2022 only as a schedule 4. Riteshji, one request to just keep it bilingual if possible. Some students have made this request to us. कि अगर दोनों भाषा में बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Sure, sure. So now coming to, I hope till now you don't get bored, and now I am entering to the our country, India, a hotspot for illegal wildlife trade. हमें पता है कि हमारा देश is very rich in biodiversity hotspot. Like out of 34 global biodiversity hotspot, India में 4 biodiversity hotspot है. What is a hotspot? A hotspot is an area which cover most variety of the biodiversity. Like जो इंडिया में 4 biodiversity hotspot है, उसमें से एक है वेस्टर्न घाट. आपको पता होगा वेस्टर्न घाट that starts somewhere from the south of Mumbai and up to Kerala. This area we call the Western Ghat, and it's very rich in the animal, wild animals variety में, उसके बाद plants में, and another is the Himalayan area. Third is the our Sundarban, and fourth is our Indo-Burman area. So आपको पता होगा Sundarban is a very famous for the tiger, but apart from tiger, it's very famous for these mangroves and variety of birds and mugger and other saline reptile species is there. Himalayans, we are very much aware that Himalayan medicinal plants are very rich and much biodiverse in the biodiversity in the Himalayan region. So that's why it's 4 biodiversity hotspot in India out of 34. And India is having very porous border with their neighbor. Like if we talk about Pakistan, or we talk about our Bangladesh or even Nepal, हमारा जो तीनों कंट्री से जो हमारा शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर इज वेरी पोरस, एंड दैट लीड टू द illegal trafficking of wild animals apart from other crime as well, like trucks. हम मोस्टली अफेक्ट हो रहे हैं आज के देश अपनी कंट्री में. पहले हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वेस्टर्न साइड से अफेक्ट थे. नाउ वी आर अफेक्टिंग विद द म्यांमार फ्रॉम ईस्टर्न साइड. तो वहां से ड्रग्स भी ट्रैफिकिंग होती है. एंड वाइल्ड एनिमल का सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग जो पहले हमारा इंडिया नेपाल से होता था, अभी सारा ट्रैफिकिंग हमारा म्यांमार से हो रहा है, इलीगल ट्रेड का. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोकल डिमांड भी बहुत सारा है वाइल्ड लाइफ ट्रेड का, अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल डिमांड. और ग्लोबल डिमांड वी यूजुअली कंप्लेन टू इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमारा वर्ल्ड का हमारा जो हमारे यहाँ से जो वाइल्ड एनिमल का डिमांड है वो मोस्टली चाइना जा रहा है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, हनोई एंड मलेशिया, बट मैक्सिमम इट्स गोइंग टू चाइना. एंड लोकल डिमांड इज अनफॉर्चुनेटली वी आर अफेक्टिंग विद वाइल्ड लाइफ ट्रेड बिकॉज लोगों का जो बिलीफ है वो ब्लैक मैजिक में ज्यादा है. इसलिए हमारी सबसे ज्यादा डिमांड मध्य प्रदेश इसमें है, में भी है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, स्पेशली नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो आई शेयर यू फ्यू स्पीसीज जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और जिनका सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है. आई कीप रिप्रेजेंटिंग इधर एज ए मैमल्स और बर्ड्स और इवन रेप्टाइल्स. सो पहले नंबर पे है वो है पैंगोलिन. आई होप कि आप लोगों ने पैंगोलिन के बारे में सुना होगा. एंड बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर वी इवन हैव नॉट सीन इन वाइल्ड बिकॉज इसका बिहेवियर है 90 नॉक्टर्नल एनिमल है और लगभग 98% लोगों ने इसको वाइल्ड में ही नहीं देखा है. बट डिस्पाइट दैट आप देखिए वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग मैमल्स है. एंड आई एम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल दिस ग्रुप, सो आई ऑलवेज read it out. There is a Caesar in Malaysia, then Caesar in Singapore, then Sri Lanka, then Indonesia, then Botswana, then Cameroon, even in India also.
and due to this trafficking, pangolin को साइंटिस्ट ने अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है. डिस्पाइट दैट इसकी जो 8 स्पीसीज है, 4 अफ्रीका में मिलती है, 4 इंडिया में मिलती है. हालांकि लास्ट वीक जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्लेम किया है कि दे डिस्कवर्ड अनदर स्पीसीज, यूजुअली दे गिव देयर नेम एज ए हिमालयन पैंगोलिन. अदरवाइज इंडिया में 2 ही स्पीसीज मिलती है, चाइनीज पैंगोलिन एंड इंडियन पैंगोलिन. तो जितनी भी 8 स्पीसीज है, 8 की 8 क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो चुकी है. इतना इसका डिमांड है. एज पर द my Caesar, my experience, the demand of pangolin for their pangolin scales because they believe in the medicinal purpose. Tibetan Asian medicine, yeah, Tibetan Chinese medicine is the reason behind them for the trafficking of pangolins scales. And apart from their scales, like in Thailand and even Laos and Cambodia, for meat, फॉर डेलिकेसी भी इसका लाइफ पैंगोलिन थ्रेड बहुत लाइफ पैंगोलिन थ्रेड इसका होता है. सेकेंड स्पीसीज है जो हम सब जानते हैं वो है एलिफेंट. हमारे यहाँ एशियन एलिफेंट है और अफ्रीका में अफ्रीकन एलिफेंट्स है. सो अफ्रीकन एलिफेंट्स की सबसे ज्यादा पोचिंग होती है बिकॉज ऑफ देयर डिमांड एज ए ट्रिंकेट, आर्टिस्टिक पर्पस, ज्वेलरी एंड स्टेटस. रफली इन लास्ट 9 years 2200 एलिफेंट से रिलेटेड सीजर हो चुके हैं. आप सोच सकते हैं, इट्स अ ह्यूज एनिमल एंड दे किल्ड जस्ट फॉर देयर टस्क फॉर आइवरी. सो ये एक दिक्कत है एंड नाउ इट्स रीचेस अप टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. इन इंडिया आल्सो ह्यूज डिमांड इन जयपुर, जो जयपुर ओनली. एंड आज ही मैं आपको प्रेजेंटेशन से पहले मेरा राजस्थान के ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ. दे टोल्ड मी कि 3 दिन पहले ही 20 kg आइवरी सीजर हुआ है चूरू में. So in our country also, Jaipur is a hub for this carving of ivory articles. Rhino horn is a big challenge for us to save the rhino. 5 स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में. इंडिया में एक 1 horn rhino है जो हमारे अलीपुरद्वार एंड असम, मतलब काजीरंगा और के आसपास मिलते हैं. और आपको शॉकिंग होगा कि इसका जो प्राइस है ब्लैक मार्केट में वो कोकीन से भी ज्यादा है. मतलब रफली $65,000 पर kg in black market, even costlier than the high premium quality of drugs and gold. So I don't know why they are so fussy, and it's nothing but a keratin जो हमारे नाखून या हेयर होते हैं, but they believe कि इससे उनको मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं या जो भी इनके बहुत सारी इसमें भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं. बट दैट लीड टू अनफॉर्चुनेटली जितनी भी स्पीसीज है, लाइक ये 2 horn राइनोज है, सुमात्रन राइनो है, जो एक्सटेंशन हो जाएगा, इस पोजीशन पे पहुंच चुका है. टाइगर, इसके बारे में आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई हैव टू से समथिंग, और बिकॉज यू गाइज आर वेरी लकी, यू आर लिविंग इन द मध्य प्रदेश, दैट टू बी इन द जबलपुर tiger capital. I told people say Nagpur is a tiger capital. I said now Jabalpur is a tiger capital क्योंकि मध्य प्रदेश is a tiger state. और आपके लगभग 150 किलोमीटर में आप जबलपुर के आसपास करेंगे तो बहुत ही prominent tiger reserves हैं. And I believe जो कंट्री में रफली 3600 टाइगर हैं, उसमें से आज हमारे पास 800 टाइगर्स हैं. उसमें से भी 20-30% जबलपुर के आसपास है, 100-200 किलोमीटर के रेडियस में. एंड टाइगर इज अपेक्स प्रीडेटर. इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं एंड यू नो इट्स अ वेरी कैरिज्मेटिक एनिमल. बट अनफॉर्चुनेटली इसका हर पार्ट्स का डिमांड है, चाहे उसकी पैड्स हो, चाहे बोन्स हो, चाहे क्लॉज हो, चाहे विस्कर्स हो. So unfortunate. And earlier in 19th century, 1 lakh tiger थे. Now we are having roughly 4,000 tiger. But yes, we are lucky because of government intervention, support of scientific community and support of the local community. We are in a position कि अब हम इसकी populations को बढ़ा रहे हैं और हमारे पास एक substantive टाइगर पॉपुलेशन है. इंडिया में 70%, वर्ल्ड की 72% टाइगर आज इंडिया में है और उसके भी 24% रफली टाइगर मध्य प्रदेश में है. अमूर लेपर्ड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेपर्ड के वन ऑफ द मोस्ट endangered, critically endangered species of leopard that usually found in the Russia, and earlier it remained only 25. Now it's after a great effort by Russia, especially the Prime President Vladimir Putin. Amur leopard population is slowly increasing. Now it reaches up to 130. It's an apex predator of that Siberian region, and usually it's found in and around Russia-China border. And it's a very rare conservation story that
proof recovery is possible if we have a dedicated efforts. Orangutan, one of my most favorite animal is orangutan. Unfortunately, we do not have orangutan, but I could have chance to visit these places. So Sumatra orangutan, we usually have in world we are having 3 species of orangutan, and all are found in and around Sumatra Island. It's this one is the Sumatra orangutan. Population is 12,000, and Borneo also orangutan. Huge population around 1 lakh, but the third one is around only 700 orangutan remain in the world in the wild. That is the Tapanuli orangutan, and you will shock that in India there is a seizure of orangutan in Hyderabad in last year. That means you can imagine the Sumatra, the orangutan who have no habitat in India, even they were seized here in India also. Means it somewhere start from their smuggling from the Indonesia, and then now it reaches somewhere into Bangladesh, and then by road in a container, it's destined towards Hyderabad, and then seizure by the enforcement authorities. Then reptiles, hawksbill sea turtle is one of the most prominent species in the trade of reptile category, exploited for their tortoise shell and its huge demand in Europe, even for their meat, eggs, and carapaces. Carapaces are used for the ornament purpose, for commercial substance, even for making a frame of the specs and goggles. And that led to this species on extinction, or leads toward the extinction. The distribution is in subtropical region, but still it's huge demand in different parts of the world. And fish is very challenging. Out of $23 billion, $15 billion of trade related to fish. Because most of the fishes are covered under the CITES, or Wildlife Protection Act. So among them, I took only 2 species, that is the wedge fish and guitar fish. The distribution in and around world of all the 3 ocean, whether it's Pacific Ocean or even in Atlantic Ocean or even in the Indian Ocean. And jointly we call them the rhino rays because the horn is there. So these 2 species are mostly smuggled and mostly demand for their different parts of body. And that's why in 2019 only CITES that they included in the CITES appendix for the conservation, for the protection of these species. Now I am entering apart from wild animal to the tree. I told you very rarely people can understand what is the difference between the wild animal and wildlife. I told you any tree might be a wildlife if it's part of their habitat. And among them is the most trafficked wild product, means wood, is the Dalbergia species. Usually we call the rosewood. In India also we are having Dalbergia species, Dalbergia latifolia and Dalbergia sisson. Madhya Pradesh also we are having Dalbergia species. So जो वर्ल्ड में डिमांड है वो सबसे ज्यादा लकड़ी की, मतलब सबसे ज्यादा टिम्बर की जो डिमांड है वो है रोजवुड की. और रोजवुड की डिमांड से जो प्रॉब्लम आ रही है हमें वो है कि इकोलॉजिकल डेवास्टेशन. दैट मीन्स आपको पता होगा कि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए. अब हर जगह से जब रोजवुड की डिमांड है तो डलबर्जिया की जो फेलिंग हो रही है, जो कटाई हो रही है, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में नहीं हो रही है. किसी भी ट्री की फेलिंग होती है यदि वो जंगल के अंदर है तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो बना हुआ है उससे उसको रेगुलेट किया जाता है. और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यदि वो फॉरेस्ट लैंड की बाहर है, रेवेन्यू लैंड में है या निजी भूमि में है, तो उसमें सामान्यतः जो लैंड रिकॉर्ड कोड होता है हर स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश का 1959 का है, और उसके अलावा उस स्पीसीज को देखते हुए उससे हम ट्री को रेगुलेट करते हैं कि इसकी फेलिंग होगी, इसकी नहीं होगी, क्या स्पीसीज है, कैसे ट्रेड होगा, क्या नॉर्म्स रहेंगे. लेकिन डलबर्जिया स्पीसीज की जो वर्ल्ड में डिमांड है, स्पेशली ब्लैक मार्केट में, वो इतनी ज्यादा है कि इसमें इतना फेलिंग होता है कि इट्स वेरी टफ फॉर गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस स्पीसीज, एंड दैट लीड टू कीप दिस स्पीसीज इन द CITES अपेंडिक्स 2. यदि इंडिया से इसका ट्रेड होना है तो अपेंडिक्स 2 में जो नॉर्म्स है एक्सपोर्ट के, उसके हिसाब से इसका ट्रेड
को रेगुलेट होना पड़ता है। बट आपको एक बताता हूँ जो इतना शॉकिंग है कि मेरा एक्सपीरियंस था दिल्ली में। आई वाज इन दिल्ली एंड आई वर्क एज अ साइटिस्ट असिस्टेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी। मेरे इंटायर ड्यूरेशन में एंड इवन आई गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, जब मुझे पता चला कि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, किसी ने एक भी एप्लीकेशन इसका नहीं लगा हुआ था लीगल ट्रेड की, सारा इलीगल ट्रेड होता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। सिमिलरली ये दूसरा ट्री है जो आप सब जानते हैं, एक बहुत फेमस मूवी आई थी जिससे ये ट्री के बारे में बताया, दो इट्स नॉट इन अ गुड सेंस, बट द क्वांटम, द वे दे डिफाइन इन द दैट मूवी कि ये ट्री कहाँ मिलता है। ये सिर्फ तिरुपति जो हमारे लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है तिरुपति वाली के आसपास जो शेषाचलम हिल में सिर्फ वहीं मिलता है वर्ल्ड में। और उस मूवी में जो डिफाइन किया गया था कि कितना ऑर्गेनाइज सिंडिकेट इन्वॉल्व है इसमें, सिमिलर सिंडिकेट, एंड इट्स ट्रू बिकॉज हमने इस पे काम किया था। वेरी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट इन्वॉल्व एंड इसकी डिमांड मोस्टली जापान में है और चाइना में है। एंड दे बिलीव देयर कस्टम, देयर ट्रेडिशन की एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है लाइक सेंजन इंस्ट्रूमेंट है जहां ब्राइड ग्रूम को देगा तभी वो मैरिज होगी। तो सिमिलरली पैटर्न है चाइना में कि ये इनके मोनेस्ट्री में इसको यूज करेंगे, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड दैट लीड टू कीप दिस स्पीसीज इन साइटिस अपेंडिक्स 2। यदि इसको चाइना को चाहिए या जापान को चाहिए इंडिया से, तो उनको एक्चुअली लीगल वे में अप्लाई करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लीगल ट्रेड होता है बट वो रफली 20% लीगल होता है, 80% इसका ट्रेड इलीगल हो रहा है। एंड इसकी कॉस्ट हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ वुड प्रोडक्ट इज रफली $5 लाख ब्लैक मार्केट या डार्क वेब पे इस स्पीसीज का ट्रेड होते रहता है। अब स्केल्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रेड, एज आई टोल्ड यू कि ये जितने भी क्राइम है डिमांड ड्रिवन है। सो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एज पर माय एक्सपीरियंस ये हर रूट से हो रहा है, बाय सी, बाय एयर, इवन बाय रोड। एंड the biggest challenge now we are facing, especially post corona, every crime is converted into online. So जो आपने सुना होगा डार्क वेब, डीप वेब एंड सरफेस वेब, इस पे ये सारे क्राइम कन्वर्ट हो चुके हैं। इट्स समटाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू कर्ब दिस क्राइम। अब प्रॉफिट किसको होता है, तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम में सबसे नीचे होते हैं पोचर्स, बीच में होते हैं इंटरमीडियरीज एंड एपेक्स पे होते हैं किंग पिन्स। सो जो पोचर्स होते हैं दे आर द वल्नरेबल communities, they usually from the local communities, and they venture out to the forest area and they either do the poaching or fell the trees, and then they hand over to the intermediaries. They were somewhere in sometime in the capital city, or sometime they are in the bordering point city of the our international border in our country. अब फिर ये लोग इसको देश से स्मगल करा देते हैं। बट जो क्रिमिनल्स या किंग पिन होते हैं वो जनरली बाहर होते हैं, देश के बाहर होते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट को ऑपरेट करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यही लोग कमाते हैं, और सबसे ज्यादा रिस्क, मिनिमम रिस्क भी इनकी होती है, और सबसे ज्यादा रिस्क नीचे पोचर्स की होती है। और यदि लॉ इन्फोर्समेंट में यदि कोई पकड़ाता भी है तो पोचर्स पकड़ाते हैं, तो द पोचर्स पकड़ाएगा, लेकिन ऊपर का किंग पिन जब भी नहीं अरेस्ट हो पाते हैं, या दे वेर समवेयर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर यूजिंग डार्क वेब, दे आर यूजिंग IP कॉल्स, so it's very tough to arrest him, and because there is a limitation between India and some different country, यदि हमारा उनसे ट्रीटी नहीं है तो हमें उनके ऊपर एक्शन लेने में भी काफी टाइम लग जाता है। सो नीचे के पोचर्स पकड़ाते हैं, और यदि ऊपर किंग पिन पे एक्शन नहीं हो पाता तो फिर वो लोग रिप्लेस कर देते हैं, पोचर्स चेंज हो जाएंगे। और क्योंकि किंग पिन इज ऑलवेज क्रिएटिंग डिमांड, सो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम में हमारे लिए चैलेंज होता है। और प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा, जैसे जैसे अपेक्स भी जाते हैं उनको प्रॉफिट भी होता है। एंड ऑनलाइन फ्रंट आई टोल्ड यू कि आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है सोशल मीडिया मार्केट। आप जितने भी प्रोफाइल्स देखते हैं जो कॉमनली अवेलेबल है, इसमें भी लोग ग्रुप बना के ये ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। फिर डार्क वेब एक अलग ही चैलेंज है, क्योंकि वो स्केल्ड किए, मास्क किए हुए हैं अपने आप को। एंड फ्लोरा, ये जो मैं थर्ड आपको स्लाइड डाला हूँ, ये आप लोगों से डिस्कशन के लिए मैं इसको शेयर किया कि अभी हम ऑर्किड्स या कैक्टी और रेयर टिम्बर पे मिनिमम काम कर रहे हैं। बहुत सारे ओपन मार्केट्स पे ये ट्रेड हो रहा है, और लोगों को इसका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि वेदर दिस ऑर्किड्स आर प्रोहिबिटेड और नॉट, वेदर दिस ऑर्किड्स ए पार्ट ऑफ साइटिस और नॉट।
इसको बेचना क्राइम है या नहीं, इसको रखना क्राइम है या नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज आज आ रहा है सभी के सामने। अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड से जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा एक है, चीज बस आपसे पूछ लूं रितेश जी, आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, पारधी पोचर्स पे जरा बच्चों को बताइएगा कि कैसे करते हैं पोचिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे टाइगर की हम बात कर रहे थे कि टाइगर को मारना, आप सोच सकते हैं कि एक वाइल्ड टाइगर को मारने के लिए कितना करेज चाहिए या कितना क्रुएल्टी चाहिए, मुझे बोलना सही होगा। सो हर पोचर्स में ये स्किल्स नहीं होती। तो ओनली फ्यू कम्युनिटीज, फ्यू ग्रुप, हम उसको बोलते हैं गैंग। सो एक गैंग जो हमारे स्टेट में ही है, जो हमारी कंट्री के अलग अलग टाइगर रिजर्व में जाके वो टाइगर को मारती है, तो वो मोस्टली कटनी के आसपास रहती है। कटनी, फ्यू पॉकेट्स पन्ना में, इवन फ्यू पॉकेट्स आपके जबलपुर में, बरेला के आसपास रहते हैं, जो डेरा बना के रहते हैं। वो आज भी नोमैड्स हैं। वो लोग उसको, वो बहेलिया, पारधी और जो कम्युनिटी है, मोस्टली उस समाज के कुछ कुछ लोग होते हैं और ये गैंग बना लेते हैं, कुछ ही लोग इसके होते हैं। फिर ये लोग एक लेग होल्ड ट्रैप की डिजाइन करते हैं। इनका आप शुरू में जाएंगे, इनका इतिहास देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने इनको यूज किया था एनिमल आइडेंटिफिकेशन में। इनका एनिमल बिहेवियर को मैं बड़ा जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मेरा बहुत ट्रेनिंग हुआ, लेकिन डिस्पाइट दैट यदि मैं जब इनसे मिलता हूँ तो इनका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही गजब का रहता है। ये इतने अंडरस्टैंडिंग रहते हैं कि कई बार तो आवाज निकाल के कोई सी भी बर्ड्स को भी बुला लेते हैं और शिकार खेल लेते हैं। तो जब एक टाइगर को मारते हैं तो एक ग्रुप में रहते हैं, लगभग 10 से 15 बंदे होते हैं और ये टाइगर को फॉलो करते हैं। अब टाइगर का जो आपने सुना होगा बिहेवियर है कि वो किंग होता है एंड इट्स वेरी फेरोसियस, उसको किसी से डर नहीं होता। यदि वो चलता है तो फिर चलेगा और जो जाना, तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस एक हम सीख सकते हैं कि वो उसका डिसाइड पैटर्न, 4 बजे उठेगा, वहां पानी पीने जाएगा, इसी समय शिकार खेलेगा, इसी रास्ते से जाएगा, तो ये वो फॉलो करते हैं और उसको डिस्गाइज करते हैं, उसके रास्ते पे कांटे लगाते हैं और जो जहां पानी पीने जाता है उस वाटर बॉडीज को भी वो ब्लॉक करते हैं ताकि उसको डाइवर्ट करते हैं। और उसके रास्ते में फिर एक लेग होल्ड ट्रैप लगाते हैं, खटका हम बोलते हैं, आपको फोटो में भेज दूंगा। और वो बड़ा अजीब सा डिजाइन रहता है कि वो पैड रहता है, यदि प्रेशर पैड होता है, जैसे ही उसको जमीन में गाड़ दे, जैसे ही उस पर पैर लगेगा तो वो खटका बंद हो जाता है। वो इतना स्ट्रांग होता है कि टाइगर उसको निकाल नहीं पाता। तो वैसे वो पैर जब उसका फंसता है तो ये 10 से 15 लोग लकड़ी लेके, भाला लेके उसको घेर लेते हैं और रात में सोते हैं और फिर उसको मारते हैं। बहुत बुरी तरीके से उस टाइगर को मारते हैं। कोई जब वो दहाड़ता है तो उसकी कोई वोकल कार्ड तोड़ देता है ताकि नियरेस्ट फॉरेस्ट कैंप में आवाज ना जाए उसके दहाड़ने की। कोई उसके इंटेस्टाइन में भाला डाल के इंटेस्टाइन तोड़ फ्रैक्चर कर देता है, क्योंकि स्किन को उनको बचाना है। इंटरनेशनल मार्केट में स्किन भी खराब नहीं होनी चाहिए। बोन्स पे ज्यादा लाठी मारेंगे तो बोन्स टूट सकती है, जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बोन्स खराब ना हो। तो वो बहुत ही डिजाइन तरीके से 15-20 लोग इस तरीके से बहुत ही क्रुएल्टी से उस टाइगर को शिकार करते हैं। तो ये स्किल्स बहुत कम लोगों में होती है और ये डिमांड बेसिस पे जब इनको डिमांड मिलती है, अब चाइना से या वियतनाम से या तिब्बत से टाइगर मारने हैं, तो इनको अप्रोच किया जाता है। जब इंडिया में बैठे हुए इंटरमीडिएरीज होते हैं जो समटाइम्स दिल्ली में होते हैं और यूपी में कहीं होते हैं, और वो फिर इनको वेंचर आउट करते हैं। दे प्रोवाइड फैसिलिटेट कि आप रणथंभौर में टाइगर मारिए या कान्हा के आसपास करिए या फिर नीलगिरी में जाके करिए, तो फिर ये लोग अपना काम करते हैं। तो कमिंग टू द जो हमें नुकसान होगा यदि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ ट्रेड होगा, तो ये एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है। यदि कोई स्पीसीज खत्म हो जाती है, चाहे वो प्लांट्स में चाहे वाइल्ड एनिमल्स की, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा फूड वे वो डिस्टर्ब होगा। प्रीडेटर लॉस दैट डिस्टेबलाइज एंटायर फूड वे। जो आपने सुना होगा कि यदि हम टाइगर हटा देते हैं, लेपर्ड हटा देते हैं, तो हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे। हर्बीवोर्स बढ़ेंगे तो वो क्रॉप पे रेड करेंगे। दूसरा कि जो सीड डिस्पर्सल है फॉरेस्ट में, जो आप देखेंगे रीजनरेट होता है, उसमें हर्बीवोर्स एंड बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सीड डिस्पर्स करते हैं, खाएंगे और वो फेंकते जाएंगे और वहां से सीड डिस्पर्स बनेगा। यदि ये स्पीसीज कम हो जाएगी, चाहे वो ट्री जिसपे वो प्लांट्स वो बर्ड्स आके बैठते हैं या वो बर्ड्स या वो हर्बीवोर जो ये खाते हैं, तो फिर ये हमारा फॉरेस्ट का ग्रोथ भी रुक जाता है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, वो हर फॉरेस्ट का स्टॉक एब्जॉर्प्शन या उसका एक्सर्शन
वैरी करता है वहां पे इकोसिस्टम कितना है, मतलब स्पीसीज प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, ग्रासलैंड्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, और प्रॉपर, और फिर उसमें वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर है या नहीं, लेपर्ड है कि नहीं, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड पिग्स, वो जो बैलेंस होगा। जैसे एलिफेंट और राइनोस ये जो है ये बेस्ट होते हैं। यदि किसी को सिस्टम में राइनोस एंड एलिफेंट मतलब कि मेगा हर्बीवोर्स नहीं होते, तो फिर वो क्लाइमेट चेंज रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये वहां पे हर्ब्स श्रब्स को मेंटेन रखते हैं, कितने क्वांटिटी में कितने रहना है उनको, क्योंकि ये नॉन रिमिनेंट एनिमल होते हैं, मतलब ये जुगाली नहीं करती है, बहुत सारा खा जाते हैं, तो ये उस चीज को मेंटेन रखते हैं। समझे, जैसे कि जबलपुर में जो गाड़ियां हैं, यदि सरकार रेगुलेट ना करे तो सारे लोग कार खरीद लेंगे, सारे ऑटो ही ऑटो हो जाएंगे, सारे ट्रक्स हो जाएंगे। तो वो रेगुलेट करते रहते हैं गवर्नमेंट की, है ट्रक्स है तो रात में अंदर नहीं आएंगे। तो ऐसे ही ये रेगुलेटर्स होते हैं, इसको सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेसिव स्पीसीज यदि हमारे यहाँ आएगी तो जो हमारी लोकल स्पीसीज है उसको ये थ्रेटन्ड करेंगे। जैसे हम बोलते हैं नीलगिरी किसी जमाने में हमारे यहाँ नहीं थे, बाहर से आए। लेंटाना जो आपने सुना होगा, एक वीड होती है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आज सरकार का लाखों करोड़ों रुपए जंगल में लेंटाना इरेडिकेशन पे जाता है, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ लेके आए थे। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए। अब एक रेयरिटी ट्रैप हो गया है, यदि कोई स्पीसीज रेयर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने बताया कि साहब बता रहे थे, ऐसे ही एक रेयर कछुआ मध्य प्रदेश में ही मिलता है चंबल में, उसको हिंदी में लाल तिलकधारी बोलते हैं और इंग्लिश में उसका नाम है रेड क्राउन रूफ टर्टल, एंड साइंटिफिक नेम इज बाटागुर कछुआ। अर्लियर इट्स कछुआ, नाउ इट्स नेम चेंज बाटागुर कछुआ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, शेड्यूल्ड 1, अपेंडिक्स 1, लेकिन ये बहुत रेयर है, एंडेमिक टू चंबल्स। तो जैसे इसमें अब इसकी इतनी डिमांड है चाइना में कि यहां से वहां स्मगलिंग होती है। तो यदि कोई स्पीसीज रेयर है तो फिर उसकी पोचिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्योंकि उसमें पोचर्स को हाईएस्ट प्रॉफिट मिलता है। अब आप सोचिए, चंबल में जो उसकी शिकार कर रहा था, हमने एक गैंग बस किया, उसमें 37 लोगों को अरेस्ट किया 6 स्टेट से, और फॉरेन से भी एक आदमी को पकड़ के लाए। तो जो पोचर्स था उसको तो 500 रुपए में उसने टर्टल बेच दिया, लेकिन जो फाइनल आदमी हमने जिसको पकड़ा वो $3000 में उसने लास्ट ट्रांजेक्शन किया। आप सोच से $3000 मतलब कितना होता है। तो पोचिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर उसी स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है और ब्लैक मार्केट में उसके प्राइस बहुत हाई होते जाते हैं। एक बड़ा विशिट साइकिल क्रिएट हो जाता है। हमें इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल डिमांड है वो डिमांड बेस्ड क्राइम और वो रेयर स्पीसीज पे ज्यादा ट्रैप करते हैं। दूसरा जो चैलेंज आता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से, जो हम सबको पता है, कोरोना, सार्स वायरस, कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस 2। ये क्यों हुआ था सबको पता है, ये वुहान से हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये एक जूनोटिक डिसीज थी। एज पर द मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक यूनिवर्सिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एमिनेंट यूनिवर्सिटी, दे टोल्ड कि ये प्रोबेबल बैट से ह्यूमंस में आया था, और बीच में इस बार इंटरमीडिएट होस्ट पैंगोलिन था। कोरोना वायरस 1 भी आया था, अभी 2 आया। हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस 3 भी आएगा। और आपको पता है कोरोना ने पूरा वर्ल्ड को स्टॉप कर दिया था, एंड ऑल आर अफेक्टेड। आज आप स्कूल्स में हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, आप देखेंगे उसमें से 76% लोग मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, बिकॉज ऑफ, आई से ऑलवेज की स्टार्ट विद द कोरोना। कोरोना के समय जो हमारा वर्चुअल मोड चालू हुआ, दैट लीड टू देम टू यूज द मोबाइल्स। पहले इंडिया में 1:1 था, रफली 0.8, मतलब जितनी पॉपुलेशन थी 0.8 के आसपास मोबाइल थे। अभी तो ये 1.92 तक जा रहा है, मतलब हर घर में 2 से 3 मोबाइल आ रहे हैं। तो आप सोचिए ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ वाइल्ड लाइफ ट्रेड का। जूनोटिक डिसीज आई, जूनोटिक डिसीज से पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया, एम्प्लॉयमेंट, लोगों की जान चलेगी। अब जो जनरेशन आ रही है वो मोबाइल एडिक्टेड हो गए। सो दीज आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्राइम। तो अमंग देम हाईएस्ट रिस्क स्पीसीज, क्योंकि ये लोग पैथोजेंस होते हैं, इसमें पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं स्पीसीज में। यदि ये ह्यूमन के इंटरेक्शन में आएंगे या किसी दूसरी स्पीसीज के इंटरेक्शन में जो उस कॉन्टिनेंट की ही नहीं है, तो फिर ये एक नया होस्ट में जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे। सो दैट इज अ बिग चैलेंज। एंड फाइनली, एंड द अदर चैलेंज ऑफ ड्यू टू इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज द कम्युनिटी। फाइनली लोकल कम्युनिटी हु आर लिविंग इन एंड अराउंड, तो इको टूरिज्म कोलैप्स हो जाएगा। लाइक पन्ना में आपने सुना होगा 2010 के आसपास हमारे पास टाइगर 0 हो गए थे। आंसर इसका में भी आप देखो पन्ना में आज क्या बढ़िया है, गवर्नमेंट एंड साइंटिफिक कम्युनिटी एंड लोकल सपोर्ट से हमने जैसे टाइगर को रिवाइव किया। आप देखिए लास्ट ईयर है वहाँ
ओबेरॉय होटल भी खुला, ताज होटल भी खुला, एंड सबसे ज्यादा वहाँ एयरपोर्ट भी बूस्ट किया और कितना टूरिज्म आने लग गया, तो लोगों की इनकम जनरेशन हुई, प्रॉपर्टी रेट हाई हुए। अदरवाइज ये सारा प्रॉब्लम 15 में हमने फेस की थी 2010 में। लोगों को जो वहाँ के जंगलों से MFPs मिल रहा था, इंडिया में वाइल्ड एनिमल्स तो हम एक्सप्लॉइट नहीं करते, कंप्लीटली बैन है, कुछ कंट्री में होगा, लेकिन हमें जंगल को प्रिजर्व करने से जो लोकल कम्युनिटीज को उससे MFPs मिलती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, टिम्बर मिलते हैं, सस्टेनेबल, वो सारा नुकसान हो जाता है यदि वहाँ वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे। एंड फाइनली जो करप्शन है दैट अफेक्ट द एंटायर कंट्री। यदि इलीगल वैल्यू ट्रेड होगा तो करप्शन आएगा, करप्शन को कॉम्बैट करने के लिए जो गवर्नमेंट पास जो फंड होगा वो डेवलपमेंट में हम लगा सकते हैं, वो सारा अफेक्ट होगा। तो दीज आर द अल्टीमेटली पे बाय द कम्युनिटीज हु आर लिविंग इन एंड अराउंड। अब हम कैसे इस मीनिंग से कॉम्बैट कर सकते हैं, तो ये 4 टूल है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लॉज एंड इन्फोर्समेंट है वो स्ट्रेंथन हो। तो इंडिया इज लकी कि हमारे जो एक्ट है वो काफी स्ट्रेंथन है, बस हमें इन्फोर्स करना है। लाइक जो इन्फोर्समेंट का स्टेटस है, लाइक मध्य प्रदेश में हो सकता है हाई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जाते आएंगे तो वहां पे इतना इन्फोर्समेंट का अवेयरनेस नहीं है। टेक्नोलॉजी का लिवरेज हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ डज एवरीथिंग इज रन थ्रू द टेक्नोलॉजी। लाइक इंडिया वी आर वर्किंग टू डेवलप द वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस इन सम एडवांस स्टेजेस। कल ही हमारा एक मीटिंग है कि हम वाइल्ड फिंगरप्रिंट लिफ्ट करें वाइल्ड एनिमल्स के आर्टिकल से, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। We are using AI-based detection system, like we are using Gadget for elephant monitoring. We are using camera trap, AI-based camera trap for alerts. If someone venture out in the forest area, तो हमें पता चल जाता है। हम इस पे और काम करें। Database creation, linking of database with the other agency, with the court for monitoring of the wildlife cases, empowering local communities कि उनको alternate livelihood activities दिला रहे हैं। Like अभी जो बात हुई पारधीज और जो ड्रेडेड कम्युनिटीज हैं, उन लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं, उनके लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज दे रहे हैं कि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। यदि कहीं से डिमांड आ रही है तो वो लोग के पास यदि लाइवलीहुड होगा तो दे वोंट इन्वॉल्व इन द क्राइम। एंड डिमांड, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे आप लोगों से भी हेल्प चाहिए, या मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिमांड ड्रिवन क्राइम है, तो हम लोग अवेयर करें एक दूसरे को कि इनसे बने प्रोडक्ट हमें नहीं लेने। यदि हमारे घर में चेयर और टेबल हम लाइक नील कमल है या बाकी भी अर्बन लैडर है आ सकती है, तो हम क्यों डिमांड करेंगे रोजवुड के ही हमें लकड़ी चाहिए, या हमें सैंडलवुड, हमें रेड सैंडलवुड का ही मटेरियल चाहिए, है ना, या पर्स हमें चाहिए तो वो क्रोकोडाइल स्किन का चाहिए। तो ये डिमांड ड्रिवन क्राइम ही होते हैं। यदि हम डिमांड अवेयर हो जाएंगे तो हम सारे ये काम नहीं करेंगे। एंड फोर्थ इज इम्पोर्टेंट, लास्ट स्लाइड फॉर यू गाइस, कि आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो एज ए गवर्नमेंट के थे। फोर्थ ये है कि आप वाइल्ड लाइफ क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स को बता सकते हैं, आप अपने जो सेंसिबल हैं आपकी ग्रुप में, आपके परिवार में, कि आपको लगता है कि हाँ वाइल्ड लाइफ क्राइम है। जैसे बहुत से हमारे हेल्पलाइन से जहाँ नंबर सीक्रेट रखे जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, जहाँ पे आते रहते हैं कि साहब यहाँ पे किसी ने पैरट रखा हुआ, मिट्ठू जो पैरट होते हैं उनको पालना भी क्राइम है, आपको मैं बताता हूँ, शेड्यूल 2 में है। टर्टल्स लोग रखे हुए हैं, तो आप एक सावधानी पूर्वक बता सकते हैं नियरेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को या पुलिस ऑफिसर को। फिर कंज्यूमर, जो मैंने बताया कि आप डिमांड जो भी है वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स की डिमांड ना करें, पेट के रूप में ना रखें एक्सोटिक स्पीसीज लाइक इगुआना की बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर कंजर्वेशन में आप सपोर्ट करें, जो आज आप कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट छात्र संसद इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम सब अवेयर बने, एक एटलीस्ट एक पौधा लगाएं और उसकी केयर करें, या पौधा किसी ने भी लगाया हो आप उसकी केयर कर लें। पौधे लगाने वाले तो मुझे लगता है बहुत होंगे, लेकिन केयर करने वाले बहुत से हैं, और जब तक वो स्टेब्लिश ना हो रहा है एटलीस्ट 3 साल या 5 साल तक आप जरूर उसकी केयर करिए, क्योंकि ये पौधा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स मल्टीपल बेनिफिट फॉर देम। एंड अवेयरनेस, आज आप अपने जो इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए आपके साथी स्कूल्स के, आप उनको अवेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को कर सकते हैं, आपके सोसाइटी में कर सकते हैं कि साहब हमें ये वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ये बहुत यूनिक है और इससे हम जुड़े हुए हैं, हमारा लाइफ जुड़ा हुआ है, ह्यूमन एक्सिस्टेंस विद एक्सिस्टेंस ऑफ द एनिमल की थॉट प्रोसेस हमें आनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी हमें जानकारी दी स्पीशीज के बारे में, उनके ट्रेड के बारे में।
and most importantly, the cascading effect of the trade of species that is reaching all of us. It's affecting all our lives, all our lives. So it was really an insightful session, and I think There's we an can echo, open the floor. Tanya. There's an echo. Perhaps there Oh, you're connected by two devices. Sir, I'm so sorry. I'll just put my headphone properly in the place. Probably that's the issue. I'm at Delhi right now, so not in my usual office settings. So I'm really sorry for that. Not at all. Sir, am I audible now? Yes, you are better. Sir, Yeah, thank you. Thank you so much, sir, for such an enlightening session. And I think all the students are really pumped up now that they know that the cascading effect of wildlife trade reaches all of them and each one of us. So I think we can open the floor for questions for a bit. I think young minds will have a lot of questions, but probably they can ask a few and then save the rest for the next session, of course. So, dear friends, do we have some questions to ask sir about? आप लोगों के पास में मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. Raise your hands, please, and we'll put on your microphone, please. सर, तब तक के लिए मेरा तो एक क्वेश्चन है कि सर आप कोई ऐसे इंस्टेंस के बारे में आपके बताइए जहां आप यू आर क्रेडिटेड विथ nabbing the international wildlife crime criminals. तो कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग मामला हो जहां पर आपने साम दाम दंड भेद लगा करके उस क्रिमिनल को पकड़ा हो. I think the children will get, motivated about this topic more, I guess, when they know how much effort goes into nabbing the criminals. Now that we've known all about the crime. Lajumpa is maybe an example. Ritesh. Yes, he was a terrorist of international fame, I must say. He was a very notorious person that sir nabbed. So, sir, we would love to know about that instance. साम दाम दंड भेद तो ज्यादा नहीं बता सकते, आप समझती हैं, बट हाँ, इट्स ए गुड स्टोरी. हम एक केस को चेज कर रहे थे जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से ही आया. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो अपने मध्य प्रदेश में है, इट्स इंटरेस्टिंग केस. और जैसे आपने सुना, हम भी जब अपनी एकेडमी में ज्वाइन किया तो हमने भी सुना था, जैसे मैंने आज बच्चों को बताया कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऐसा होता है और उसमें इतने ऑर्गेनाइज सिंडिकेट होता है, डिमांड चाइना से आती है. एंड तो हमको एक केस मिला, हमने भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा केस होगा जो वाकई में चाइना, मतलब वहां से डिमांड आई और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पोचिंग हुई और वो माल चाइना जा रहा है. तो हमने, जो होता है, मैंने आपको बताया, हमने पोचर्स को पकड़ा और पोचर्स में वही गांव वाले लड़के थे. सो रूटीन पेट्रोलिंग फॉरेस्ट ऑफिसर्स कर रहे थे और उनको लगा कि 7-8 लोग जंगल में दिखे कोर एरिया में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मड़ई रेंज में, और वो भाग गए. क्योंकि ये जो पेट्रोलिंग हाथी पे चल रही थी, हाथी पे रूटीन पेट्रोलिंग होती है कभी कभी टाइगर रिजर्व में, तो वो बेचारे ज्यादा, आपको पता होगा हाथी वाले ज्यादा दौड़ भी नहीं सकते, वो महावत था, फिर वो उतरा, तब तक भाग गए. लेकिन एक अच्छा काम हुआ कि वो अपना कपड़ा छोड़ के भाग गए डर के. तो उनके सबके कपड़े वहां छूट गए थे, बर्तन छूट गए थे, और पेंगोलिन के 3 स्केल, जो मैं आपको पेंगोलिन बता रहा हूँ, ऐसे स्केल्स गिर गए थे. तो जैसे ही पेंगोलिन्स के स्केल गिरे, फिर वो महावत ने रिपोर्ट किया वायरलेस से अपने ऑफिसर्स को. ऑफिसर्स ने फिर फील्ड डायरेक्टर को, देन फील्ड डायरेक्टर ने चीफ वाइल्ड वार्डन को. तो जैसे ही पेंगोलिन का नाम आया, तो उस समय हमारी एसटीएफ काम कर रही थी, पेंगोलिन के लिए थी. तो इमीडिएटली दे इन्फॉर्म अस कि आप लोग पहुंचो वहां पे, क्योंकि 3 पेंगोलिन स्केल्स मिले हैं और कुछ यूटेंसिल्स मिले हैं और कुछ कपड़े मिले हुए हैं. तो फिर हम लोग पहुंच गए. फिर वो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप किया कि कपड़े देखते हैं. कपड़े से पता चला तो एक टी शर्ट मिली जिसमें कबड्डी टीम लिखा हुआ. तो फिर पूछा तो फॉर्चुनेटली वो कबड्डी टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही वो टी शर्ट उनको दी थी. तो वो कबड्डी टीम में से फिर उनको ढूंढना चालू किया, तो एक आदमी मिल गया. उस आदमी से भी ढूंढा तो बोले साहब मैं नहीं, पूरी टीम की टीम इन्वॉल्व थी. 10 आदमी को पकड़ा फिर हमने और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग गए थे शिकार खेलने और पेंगोलिन स्केल्स थे. हमने कहा 3 तो नहीं होंगे. फिर उन्होंने बताया कि नहीं सर वहां पे और है. फिर गए तो हमें लगभग 3 किलो पेंगोलिन स्केल्स मिले. एंड देन वी स्टार्ट टू इंटरोगेशन.
जो आपने बताया साम दाम दंड भेद वो सारे लगाए और उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि सर हमने सिर्फ पेंगोलिन नहीं मारा, हमने यहाँ टाइगर भी मारा। तो हम एवरीबडी शॉक्ड कि कोर एरिया में टाइगर मार दिया तुमने। फिर हमने चेक किया तो एक वाकई में रेडियो कॉलर टाइगर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला हाँ सर उसके गले में कुछ घंटी बंधी हुई थी, वो मार दिया। हमने कहा अच्छा भाई तुमने मारा, तो फिर वो घंटी कहाँ है, तो बोले सर वो हमने तोड़ दिया, हमें पता था कि इससे फोटो खींचती है, तो हमने तोड़ के एक डैम में डाल दिया। डैम में बहुत पानी था उस समय, तो हमने कहा ठीक है, हमने गोताखोर लगाया लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए उसको। पर हमने पूछा भाई कहाँ गया ये, तो उन्होंने बताया कि साहब टाइगर स्किन हमने दे दी है कहीं पे, एक बाबा के पास चली गई जो पैसों की बरसात करते हैं छिंदवाड़ा जिले में। वो उस पर बैठेंगे और रात में पूजा करेंगे। ये देखो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, लोकल डिमांड। तो बोले कि वहां पे एक तांत्रिक है जो पूजा करते हैं छिंदवाड़ा में और रात में पैसे बरसाएंगे। अच्छा, हमने कहा ठीक है, हमने कहा हमें भी पैसे चाहिए, पैसे तो सबको चाहिए, चलो अपन भी पैसे की बरसात में शामिल हो जाएंगे। तो फिर हम लोग उसको लेके गए भक्त बन के, और फिर बाबा को भी पकड़ा। तो बाबा से पूछा कि आप बरसाओ पैसे, यदि पैसे बरसा सकते हो तो फिर जरूरत ही क्या है, हम सारे फॉरेस्ट वाले ही सबसे अमीर आदमी होते हैं यदि टाइगर से पैसे बरसा सकते। तो फिर अनफॉर्चुनेट वो कुछ होता नहीं है, फिर उनको भी अरेस्ट किया। और फिर इंटरेस्टिंगली हड्डी का पूछा टाइगर की, तो उन्होंने बोला कि एक सरपंच को दे दिया, सरपंच को अरेस्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि साहब हमने एक इटारसी में एक मीट व्यापारी को दे दिया जो मांस का व्यापारी है, गाय का बकरी का उस समय का, उसको अरेस्ट किया। तो उसने बोला साहब मैंने ये माल तो दिल्ली दे दिया है। फिर हम दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में हमें एक नाम मिला, उसका नाम था पसांग लिमी। फिर हमने उसका सीडीआर और फोन सा बहुत सारा डेटा देखा, तो हमें पता चला कि वो मजनू का टीला एक जगह है जहाँ पे भारत सरकार ने मोस्टली तिब्बती रिफ्यूजीज को रखा हुआ है। आपको पता होगा कि दलाई लामा को हम सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के इंसेशन में, तो धर्मशाला में, देहरादून में, कर्नाटका में हम सपोर्ट करते हैं तिब्बतीज को। तिब्बती कैंप में है, हमें उसका फोटो भी मिल गया। सो हमारी टीम 3 मेंबर की टीम थी, हम वहां 49 डेज तक ऑपरेशन करते रहे। वहां पे हमको सारे फेस एक जैसे दिखते थे, जैसे चाइनीज दिखते हैं ना, आपको भी लगेगा। हम जबलपुर के तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम फोटो से हम शौक रह जाते थे कि हम पहचान ही नहीं पा रहे, सब एक जैसे लगे। मेरा स्टाफ मुझे आज भी आगे, सर यहाँ तो सारे ही पसाएंगे, किसको पकड़ेंगे। तो फिर हमारा 49 डेज का ऑपरेशन चला, हम 7 दिन थक गए। इवन हमें जो लोकल टीम थी दिल्ली की, बोले साहब आप नहीं अरेस्ट कर पाओगे इनको, पर हमारी टीम अच्छी थी, हम वहीं रहे। फिर हमने उसका पैटर्न एनालिसिस किया कि ये उठता कहाँ है, जाता कहाँ है, आता कहाँ है। तो वो यूजुअली बुधवार शुक्रवार को वो मजनू का टीला से हौस खास, आप तो दिल्ली में ही है तो आप जानते होंगे, हौस खास जी। तो मेट्रो हौस खास उतरेगा, फिर ग्रीन पार्क जाएगा। हम लोग फिर शाम को ग्रीन पार्क बैठे, लेकिन वो ट्रेन जब वो मेट्रो खुलती थी तो सारे फिर वो सॉरी मतलब मैं वर्ड यूज, चिंकी बोलते थे शायद दिल्ली में उस समय। जी। सारे एक जैसे दिखते थे, तो सारे एक जैसे दिखते थे वहां भी। मतलब हमारे पास अब 1000 से 200-300 आदमी हो गए। अब 200-300 तो भी उसको ढूंढना फिर चैलेंजिंग था। फिर वही लोग थे, तो फिर हम लकीली वो फोन बंद कर लेता था, फिर हम फॉलो करते रहे कि फिर वो जहां जाता था हम फॉलो करते रहे। एक दिन हमें मौका मिला कि वो दिख गया हमें कि यही आदमी है। हमने उसका रिचार्ज कराया, और लकीली रिचार्ज उस समय होता था तो मैसेज आया जोर से, तो वो हमें लगा कि यही बंदा होना चाहिए। और अब सबका लिमिट क्रॉस कर चुका था कि आप कुछ भी हो, अब तो जाना है तो करेंगे। तो फिर हमने उसको फॉलो किया, और उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम का रोड का नाम होता था 7 RCR जी। एस्कोस रोड। तो ट्रेन चली जो ग्रीन पार्क से फॉर मजनू का टीला के लिए, तो 7 रेस्कोस रोड पे जो मेट्रो स्टेशन था, हमने वहां उसको पकड़ लिया। हमने जैसे ही पकड़ा वो समझ गया, उसकी चेकिंग की तो हमें रेड सेंटर्स मिल गए बॉल्स बहुत सारे। एंड देन ही स्टार्ट टू शाउट कि मेरे को पता ही था इस देश तुम्हारा इंडिया सबसे बोगस है, यहाँ कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, और चिल्लाना चालू कर दिया। और CCTV फुटेज थे वहां पे। फिर हमने उसको निकाल के वहां भी जहाँ पे डाक तवा ले आके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। एंड देन ही स्टार्ट, यहाँ साहब मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरे नाम ये है। फिर उसको हम पकड़ के लाए यहाँ पे, और उसने बहुत सारा बताया हमें। मैं इतने साल से गया था, मैं इटारसी आया 2 साल पहले, यहाँ से और 2-3 टाइगर बोन्स लेके गया, और वो माल बोले आपका चाइना चला गया। उसने फिर एक लेडी का नाम बताया, उसका नाम यानचेन था। और यानचेन को फिर 2018 से पकड़ रहे थे, पकड़ते पकड़ते हमने उसको अभी 2024 में पकड़ा। सो दीज आर द स्टोरी।
We can't, of course, ask too much because that will affect investigation. Children, No, indeed, those sir. things should not be asked too much. बस इतना बहुत समझ लो कि जो OTT पर आप देखते हो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम रितेश जी करते हैं. सर बिल्कुल सर, दैट वाज माय आइडिया टू गिव एन इनसाइट की वाइल्ड लाइफ क्राइम्स तो हम जानते हैं, लेकिन उनको पकड़ने में तो हालत खराब हो जाती है. सर ने इतने इंटरेस्टिंग वे में बताया, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही ग्रूलिंग ऑपरेशन रहा होगा. इतने दिन लगे, इतनी मेहनत लगी, इतना मैन पावर लगा, तो आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो डेफिनेटली. सो चिल्ड्रन, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ, या वी शुड एंड दिस सेशन? कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है आप पूछ सकते हैं. We will what we can do is we can request रितेश जी, आपको अगर हम ग्रुप पे कुछ समय के लिए ज्वाइन कर लेंगे तो ये इन बच्चों के ग्रुप में बच्चे whatever questions they have they will post on that, and if you can just help us answering those. Sir, somebody has asked a question in a chat. Go The ahead. question goes, sir, please, sir, people in rural villages try to kill tigers in retaliation of destroyed livestock and harvest by the tigers. How can we protect those tigers? It's a good question. I think Yashi ने पूछा है. Yashi, there is a government having a scheme in Madhya Pradesh and every part of the country also कि जब भी टाइगर किसी लाइव स्टॉक को किल करेगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इमीडिएटली उसका कॉम्पेंसेशन देना होगा, और वो कॉम्पेंसेशन काफी हैंडसम अमाउंट रहता है. पहले तो ये था जब टाइगर कम थे कि वो उसको जंगल में ही जब जाएगा कैटल तो मानेंगे. अब बिल्कुल नहीं है. यदि टाइगर ने उसको मारा है, चाहे वो गांव में मारा हो, चाहे घर में घुस के मारा हो, चाहे वो नॉन प्रोहिबिटेड एरिया में भी कैटल चले गया, जो गांव वाले बेचारे चले जाते हैं, उसके बाद भी उनको लगभग 30,000 रुपीज हाईएस्ट तक जो भी सरपंच उसका बोल देगा और डॉक्टर, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिटेलिएशन किलिंग मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक के लिए तो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत प्रॉम्प्टली पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है. हम तुरंत एक्वायर कर लेते हैं उस एनिमल्स को और उसके बाद उसको कॉम्पेंसेशन तुरंत दे देते हैं. जो होता है वो अकाउंट में चले जाता है उसमें, और वो बकायदा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भी कवर है. तो टाइम बाउंड एक्शन उसको करनी पड़ती है. और मध्य प्रदेश में लगभग टाइगर, बताने में आश्चर्य आपको लगेगा, 30% टाइगर जो खाना खा रहे हैं वो लाइव स्टॉक ही खा रहे हैं. इसलिए गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा रेगुलर लाइव स्टॉक के लिए टाइगर को गवर्नमेंट देती रहती. आई होप आपको आंसर मिला होगा. Thank you, sir. Thank you. I think you answered it very, very well. And I guess, yes, she says thank you. We can close if you can ask her for permission and close the question, please. So, sir, thank you so much from all of us. We are very, very thankful and we are honored to have your insightful stories and your insightful insights into this topic, and hope to connect with you very soon. I think all the students are really delighted and I'm speaking for each one of us here. Thank you so much. हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके. बहुत ही बढ़िया सेशन था, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने का मौका मिला, और एक्चुअली में इस सेशन ने हमें अंदर से झकझोर दिया है कि वाकई में कितना, जो हम एक टिप ऑफ द आइसबर्ग समझ रहे हैं, जो 2-4 हम न्यूज में चीजें पढ़ लेते हैं, वो एक्चुअली में उसका कितना बड़ा इफेक्ट है. So this really is a food for thought for all of us to actually dig deeper into this subject and be one with it and really help save whatever we can and do whatever we can for the wildlife and the environment. So, sir, thank you so much. We will keep troubling you more. Yes. So they are very, very inquisitive minds, so they will keep troubling you more and more, and I'm sure you'll be happy to answer all their queries. And those girls, how many? I guess quite a few of them. Ritesh ji, our request is pending for you to deliver a physical session with PPT in the school itself, please. Sure. I'll come. I am always happy to share my experience with the young minds, because they are the future and we want them to be the part of this. It's a big war, basically. Indeed, sir. Indeed. Big war. We want you guys to be there, and we are really, forest department alone can't fight this crime. So we want it. And thank you so much again for Anshuman Saab to give me this opportunity. Thank you, Tanya ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.
Best Thank of you. luck. Thank Best you. wishes. Thank you, sir. Thank, So nice of you thank to you, have sir. your Thank you, sir. on a Sunday, especially. Thank you. No, sir, Thank thank you you so very much much. for taking out your time. It's a pleasure listening to you, really.